For question number 6, this is paper code 3111 ये 3111 पेपर कोड है और ये है ईयर 2022 का. So question number 6, we are going to deal only with the physics part. So question number 6 में दिया है name and state the rule to determine the direction of force experienced by a current carrying straight conductor placed in a uniform magnetic field which is perpendicular to it. So you have to name and state means explain it. Okay. So name of the rule is Fleming's left hand rule and we are going to explain it. So for first one, it's Fleming's left hand rule. And I will let you know how to use it to find the direction of the force. So this is Fleming's left hand. Fleming's left hand rule. Okay, so Fleming's left hand rule states that if we stretch, let's say these are the thumb, the forefinger and the middle finger of your left hand is stretched mutually perpendicular to each other. Let's say this is thumb, this is forefinger, and this is middle finger. Now, if forefinger gives the direction of the magnetic field, let's say this is gives the direction of the magnetic field, and middle finger gives the direction of the current, then the thumb, and the condition is that these should be mutually perpendicular to each other, and then the thumb will give the direction of the force, and if we consider all these to be in a plane of paper. Okay, so you can use that to find the direction of the force, and it states that if we stretch if we stretch finger, middle finger and thumb of left hand, mutually perpendicular to each other. And now if forefinger gives the direction of the magnetic field. So if forefinger gives the अगर forefinger डायरेक्शन देती है मैग्नेटिक फील्ड की और मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट और मिडल फिंगर है करंट की डायरेक्शन में पॉइंटेड, सो मिडल फिंगर it gives the direction of gives the direction of current, then the direction in which the thumb points, और जिस डायरेक्शन में thumb पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स जो कि एक्ट करेगी कंडक्टर में जो कि प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में और ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर. So give the direction of the current, then the direction in which the thumb points gives the direction of the force acting on the conductor. Okay, so this is Fleming's left hand rule. ये है Fleming's left hand rule. और अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर हम लेफ्ट हैंड के थंब फोर फिंगर और मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर स्ट्रेच करें और फोर फिंगर डायरेक्शन देती है
आपकी मैग्नेटिक फील्ड की मिडिल फिंगर डायरेक्शन देती है करंट की, तो सम आपको डायरेक्शन देगा फोर्स। और इसको हम फोर्स को हम मोशन ऑफ कंडक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसी डायरेक्शन में ये कंडक्टर जो है वो मोशन दिखाएगा। सो इधर यू, या फिर इसे आप फोर्स बोलो या मोशन ऑफ कंडक्टर बोलो। ओके, और दूसरा इसका पार्ट है एन अल्फा पार्टिकल which is passing through a magnetic field gets projected towards north. So in which direction will an electron project when it passes through the same magnetic field? तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इफ वी, अगर हम ये डायरेक्शन देखें तो हमारे पास डायरेक्शंस है नॉर्थ साउथ। लेट्स these with the directions north south east and west। So now let's read out the question को दोबारा पढ़े तो इसमें दिया अल्फा पार्टिकल while passing through a magnetic field gets projected towards north। So alpha particle जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। So alpha particle is, let's say this is the alpha particle and it's projecting towards north। अब ये है एक magnetic field में, so we don't know the direction of the magnetic field yet, और this is projected towards north। So किस direction में electron project करेगा when it passes through the same magnetic field? Okay, so now आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल जो है वो पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से एंड इट गेट्स प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट करेगा? तो अगर ये आपका अल्फा पार्टिकल नॉर्थ की तरफ है, तो दिस इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल जा रहा है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो एक्चुअली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। सो यहाँ कोई हम रूल यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ आपको दिया है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो वो आपकी डायरेक्शन है करंट की। और करंट की उल्टी डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की जो इसमें डायरेक्शन है वो हो जाएगी साउथ। सो साउथ जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, और पार्ट सेज दैट व्हाट इज ए सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या है? और पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बनानी है सोलेनॉइड के अराउंड। सो दिस इज पार्ट बी, जिसमें हमें बताना है कि सोलेनॉइड क्या है। सो पार्ट बी में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सोलेनॉइड क्या है। सोलेनॉइड एक कॉइल है जिसमें आपने बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स देने हैं। सो दिस इज ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ, और कॉइल किसकी? इंसुलेटेड कॉपर वायर की। और कैसे? रैप्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। जैसे आपकी कॉपी की स्पिरल बाइंडिंग होती है, जस्ट एग्जैक्टली लाइक दैट। So this is a solenoid and now it's connected to a battery। Let's say this is, अब मान लेते हैं ये क्लोज किया, मतलब इसमें करंट जो है, this close की means current is drawn into the solenoid and let this be the battery। ये एक सेल है, ये दूसरा, और ये तीसरा नेगेटिव, और करंट फ्लो करेगा आपका इस डायरेक्शन में, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये जो कॉइल है दैट इज क्लोज रैपली क्लोज्ड, इट इज क्लोजली जो है रैप्ड है इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, उसे हम बोलते हैं सोलेनॉइड। सो यू कैन, if you have to write the definition, we can say that this is solenoid is a coil of, और इसमें बहुत सारी टर्म्स है, ये एक टर्न, दो, बहुत सारी टर्न, coil of, we can say many circular turns। और किसकी? ये कॉइल तो है लेकिन किसकी? इंसुलेटेड कॉपर वायर। और उसकी एक पर्टिकुलर शेप है। सो इस केस में अगर बहुत सारी टर्न्स है दैट आर रैप्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, सो इस सोलेनॉइड की जो रेडियस है एज कम्पेयर टू द लेंथ जो है वो नेग्लिजिबल है। रैप क्लोजली
मतलब लेंथ बहुत ज़्यादा होगी और रेडियस इसकी बहुत छोटी होगी, क्योंकि इस पे हमने बहुत लंबी जो वायर है उसको टर्न्स में रैप कर करके एक छोटा सा सिलेंडर बना दिया है. So a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. So ये है आपका solenoid. Now coming on to the next part, draw the pattern of magnetic field lines of the magnetic field produced by a solenoid through which a steady current flows. तो सोलोनॉइड तो मैंने बना दिया, अब इसके अराउंड बनाते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड्स. इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ. ओके, ये है आपका सोलोनॉइड. जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स रहेंगी वो रहेंगी पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस, जो इंडिकेट करती हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इसे हम लेबल भी करेंगे. और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एक एंड से इमर्ज करेंगी, मतलब निकलेंगी, और दूसरे एंड पे जाके मर्ज करेंगी. So emerge and merge and make sure that they do not intersect each other. So they emerge and merge, और जहाँ से emerge करेंगी वो बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल, और जहाँ पे merge करेंगी वो बन जाएगा आपका साउथ. emerge मतलब यहाँ से निकले, यहाँ और भी है बीच से. तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी. यहाँ से emerge होंगी तो ये बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल. ये बिहेव करेगी एक बार मैग्नेट की तरह. यहाँ पे मर्ज होगी, अंदर हो जाएगी ये. तो यहाँ पे मर्ज करेगी वो बन जाएगा आपका साउथ पोल. तो इसका मतलब है आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है आपकी नॉर्थ टू साउथ. अगर इन देखें तो वो इनसाइड, ये है आउटसाइड. आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साइड साउथ, और इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी साउथ टू नॉर्थ. सो दिस इज साउथ टू नॉर्थ. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस कि इसके किसी भी पॉइंट पे, अगर आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे लोगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ जो है सेम रहेगी. So this is how the pattern of the magnetic field lines around a solenoid is drawn. Okay, so we are done with question number 6. Let's move on to the next question number. Okay, next question number में दिया है 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel, and the combination is connected to a battery, an ammeter, a voltmeter and a key. We have to draw a suitable circuit diagram to show this arrangement on of these circuit components. उसमें बतानी है direction of current flowing. So first part में हमें draw करना है schematic diagram. इसमें आपके पास 3 resistors हैं पैरेलल में. Okay, so 3 resistors. ये है 3 resistors. Let this be 3 resistors R1, R2 and R3, और ये कनेक्टेड है पैरेलल में. पैरेलल में कनेक्ट होने का मतलब है इन सभी रेजिस्टर्स का एक एंड, कनेक्ट करेंगे बैटरी के एक एंड के साथ, और सभी रेजिस्टर्स का दूसरा एंड कनेक्ट करेंगे बैटरी के दूसरे एंड के साथ. और हमें इसमें वोल्ट मीटर, एम मीटर और की भी बनानी है. तो सबसे पहले हमारे पास है रजिस्टर्स. लेट दीज बी द रजिस्टर्स. ये है R1, R2 एंड R3, और इनको कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ. लेट अस कनेक्ट देम टू अ बैटरी. और ये है कनेक्टिंग वायर. यहाँ पे है एक closed key. So this is key which is closed means that it is in on state. और उसके बाद है एक बैटरी. So this is battery with cell. ये एक सेल, ये दो सेल, दूसरा और ये तीसरा. ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, और इसको कनेक्ट करते हैं एम मीटर के साथ. तो एम मीटर हमेशा कनेक्टेड रहता है सीरीज में, और इसका पॉजिटिव रहेगा
बैटरी के पॉजिटिव के साथ. So positive is always connected to positive. You can connect it anywhere in the circuit, connecting wire के साथ, but make sure that it's in series. So positive is connected to positive, or negative is connected to negative. Okay. ये है complete circuit. और करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो लेट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट. दिस इज डायरेक्शन ऑफ द करंट. और इन सभी में इधर जाके करंट स्प्लिट अप हो जाएगा. तो यहाँ तक करंट आएगा आई, और यहाँ मान लेते हैं I1 चला गया, यहाँ चला जाएगा कुछ करंट I2, और यहाँ चला जाएगा कुछ करंट I3. डिपेंड करता है इनकी रेजिस्टर्स की वैल्यू क्या है. और यहाँ पे सारा करंट आगे वापस कंबाइन होके फिर आई बन जाएगा. ये है करंट की डायरेक्शन. तो ये स्कीमेटिक डायग्राम बन गया. और उसके बाद अब हमें कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर. तो वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्टेड रहता है पैरेलल में, और सभी की पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसमें सेम रहेगी. तो वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है हमने पैरेलल में क्रॉस दीस रजिस्टर्स. तो इसके दो टर्मिनल्स हम यहाँ पे, दो टर्मिनल्स के क्रॉस, सभी रजिस्टर्स के दो टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल इधर एक इधर, इनके क्रॉस कनेक्ट करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे है आपका वोल्ट मीटर, और ये है पॉजिटिव और नेगेटिव. तो ये है स्कीमेटिक डायग्राम फर्स्ट पार्ट. यहाँ आपको बनाना था सर्किट डायग्राम विद, दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट with given components. ओके, अब बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट. ओके, अरेंजमेंट ऑफ दी सर्किट कंपोनेंट्स हमने कनेक्ट कर दिया. बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर और की भी जो कि क्लोज्ड है. डायरेक्शन ऑफ करंट बता दी. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क. ये है आपका नेटवर्क यहाँ पे, और इसमें सबसे पहले R2 और R3 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो इसकी हम निकालेंगे R2 एंड R3 नेट रेजिस्टेंस are connected in parallel. Okay, these are connected in parallel, और इनकी रेजिस्टेंस पैरेलल में हम मान लेते हैं R23. और हमें पता है जो नेट रेजिस्टेंस होगी उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो इनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल का सम होगा. तो 1/R2 है 10, R3 है 10 ओम, ये है 2 टाइम्स, तो 2/10 ये आ गया 1/5 ओम, जो कि अभी रेजिस्टेंस नहीं है, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. तो R23 हो जाएगा 5 ओम. अब ये सर्किट जो है कुछ इस तरह से दिखेगा. ये है R1, ये है 5 ओम, और इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो चुकी है R23, इसे हमने मान लिया R23. सो ये है R23 जो कि है 5 ओम, और उसके बाद है R4 जो कि है 5 ओम. और अब ये सभी कनेक्टेड है सीरीज में, क्योंकि ये कनेक्टेड है एंड टू एंड. सो ये कनेक्टेड है एंड टू एंड. सो एंड टू एंड इन सबकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में हो जाएगी सी, क्योंकि ये सीरीज में है. एंड टू एंड मतलब ये सीरीज में है, तो हम उन सबको प्लस करेंगे. R1, R23, और ये था आपका R4. सो दिस इज R4. तो ये है 5 ओम, ये है 5 ओम, और ये भी 5 ओम है. तो सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ती है सर्किट की, तो ये हो जाएगी 15 ओम. तो 15 ओम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क. Okay, next question. Let's move on to the next question. Okay, next question में दिया है define the electric power and write its SI unit. तो इलेक्ट्रिक पावर है कितनी रेट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है या डिसिपेट होती है in the form of, or dissipated in the form of heat. That's called the electric power. So that's the definition. The rate at which electrical energy is dissipated or consumed in an electric circuit is called electric power.
तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 ए पार्ट। और माय सजेशन वुड बी, जब भी आपसे फिजिक्स में कोई डेफिनेशन पूछी जाती है तो यू राइट द डेफिनेशन, इट्स फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला भी लिखें और उसका एसआई यूनिट भी। तो रेट एट विच, तो कितने टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है या डिसिपेट हो रही है, द फॉर्म ऑफ हीट, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। और इसको हम डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है कैपिटल लेटर पी। तो इसका मतलब है the rate at which electrical energy is consumed or dissipated is called power, और इसका फॉर्मूला होता है P is equal to V into I, फिर V, जहाँ V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट। और अब इसका अगर आपको SI यूनिट लिखना है, इस फॉर्मूला में V और I का SI यूनिट डाल दो। V का SI यूनिट है वोल्ट, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट का है एम्पियर। तो वोल्ट को हम डिनोट करते हैं V से, करंट का है एम्पियर, तो बन गया वोल्ट एम्पियर। तो या तो आप वोल्ट एम्पियर लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो वॉट। आप इसको वॉट वॉट वोल्ट पर वोल्ट एम्पियर को हम वॉट भी बोलते हैं, या फिर आप इसको जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो। तो इसका एसआई यूनिट जो है वो वॉट है, वोल्ट एम्पियर। और ये इस फॉर्मूला से बनेगा 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, इसे हम बोलते हैं 1 वॉट। और 1 वॉट जो है 1 वोल्ट, इसको हम फर्दर अगर हम करें तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है V बाई क्यू, सॉरी W बाई क्यू। और W मीन्स वर्क का ऐसा यूनिट है जूल, और Q है आपका कूलम। तो इसे आप वोल्ट को आप जूल पर कूलम भी लिख सकते हो इनटू, और जो एम्पियर मतलब करंट, करंट का ऐसा है, करंट का फॉर्मूला होता है Q बाई टी। Q का ऐसा, Q मीन्स चार्ज का ऐसा यूनिट है आपका कूलम, C जिसे हम C से डिनोट करते हैं, और टाइम का है सेकंड। तो ये बन जाएगा कूलम पर सेकंड। तो इसे आप कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हो, कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड या वोल्ट एम्पियर, और उसी को हम बोलते हैं वॉट। तो ये इसका ऐसा यूनिट है, आप वॉट लिखो, वोल्ट एम्पियर लिखो, और जूल पर सेकंड लिखो। नाउ लेट्स रीड आउट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है 2 बल्ब्स हैं 100 वॉट, टू उनकी रेटिंग है 100 वॉट का 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट करते हैं, 60 वॉट का सेकंड और 220 सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट हो रहे हैं, और वो पैरेलल में कनेक्टेड है एक इलेक्ट्रिकल मेंस 220 वोल्ट के। तो हमारे पास है 2 बल्ब। तो ये है एक, लेट्स से दिस इज 1 बल्ब, और इसकी जो रेटिंग है वो है 100 वॉट 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। सो 100 वॉट 220, और इसके साथ कनेक्टेड है एक और बल्ब, और ये कनेक्टेड है पैरेलल में। सो हाउ डू वी कनेक्ट देम इन पैरेलल, ये पैरेलल में कैसे कनेक्ट होंगे? पैरेलल में कनेक्ट होने का मतलब है दोनों बल्ब्स का जो आपने एक एंड लेना है, मतलब एक टर्मिनल। तो मान लेते हैं मैंने ये 2 बल्ब्स ले लिए, बल्ब्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, एक बल्ब इधर है, तो ये मैंने बल्ब रिप्रेजेंट कर दिया एक, और ये दूसरा बल्ब है, इसके 2 टर्मिनल्स हैं। तो दोनों का एक एंड पकड़ के आपने बैटरी के एक एंड के साथ कनेक्ट करना है, और दोनों का दूसरा एंड पकड़ के बैटरी के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ आप की लगा सकते हो, और एम मीटर भी कनेक्ट कर सकते हो। वोल्ट मीटर हमेशा इनके क्रॉस रहेगा इधर, ऐसे फिर अगर आपको सर्किट डायग्राम बनाना है तो ये है 2 बल्ब्स जो पैरेलल में कनेक्टेड है। और पैरेलल में कनेक्ट होने का मतलब है कि दोनों में करंट अलग अलग जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रहेगा। और यहाँ पे आपको दिया है कि दे आर कनेक्टेड टू मेन्स ऑफ 220 वोल्ट।
सो ये कनेक्टेड है मेंस ऑफ 220 वोल्ट। मीन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट अलग अलग है। रेटिंग्स एक आपका 100 वोल्ट का है, एक 100 वाट का, एक 60 वाट का। तो ये आपका है 100 वाट और 60 वाट का बल्ब। अब आपसे क्या पूछा, अब आपसे पूछा है कि फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब्स फ्रॉम द मेंस। तो जैसा कि मैंने बोला कि जब ये पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं तो करंट लेट से अगर आ जाएगा पूरे सर्किट में, तो ये कुछ इधर जाएगा फर्स्ट बल्ब में और कुछ जाएगा सेकंड बल्ब में, मतलब दोनों में करंट अलग अलग रहेगा, लेकिन दोनों की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगी। तो आपका जो फर्स्ट बल्ब है उसके लिए करंट हम निकालेंगे फॉर फर्स्ट बल्ब। उसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, सॉरी पावर जो है वो है 100 वाट। और इसमें जो मेंस पे कितने मेंस पे काम कर रहा है, 220 पे। तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। तो हमें निकालना है करंट, तो इसमें करंट मान लेते हैं I1। तो I1 हो जाएगा P बाई वी। P है आपका 100 और V है 220, ये गया 5/11। तो पहले वाले में जो करंट है वो है 5/11 और करंट के जो SI यूनिट है वो है एम्पियर। So this is ampere, 5/11. Now let's find out the current drawn by the second bulb. आपसे पूछा है find the current drawn by the bulbs from the mains, तो दोनों का पहले अलग अलग निकालेंगे फिर प्लस कर देंगे। तो नेक्स्ट इज टू फॉर सेकेंड बल्ब। क्योंकि आगे हमें ये ऐड ही करना है तो मैं इसे सिर्फ पावर को 100 वाट बाय 220 एम्पियर ही रहने देता हूँ, ताकि आगे आपको ऐड करने में जो है आसानी रहे। तो ये है फॉर सेकंड बल्ब। सेकंड बल्ब के लिए भी जो पावर है वो, सॉरी पावर अलग है 60 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम है, और करंट इसका मान लेते हैं I2। तो I2 हो जाएगा P बाई वी का पावर है 60/220 एम्पियर। नाउ ये आ गया दो बल्ब्स का अलग अलग जो है करंट। अब ये दोनों बल्ब जो है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इधर आके आपसे पूछा है कि दोनों बल्ब कितना ड्रॉ करेंगे करंट। I1 और I2 जो है वो ये आपका प्लस करके आपको I आएगा। तो हम लिखेंगे इसमें टोटल करंट। टोटल करंट मतलब I, टोटल करंट I हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 था 100/220 और I2 है 60/220। तो इसको मैंने लोएस्ट टर्म में नहीं किया है क्योंकि अब मुझे ऐड करने में आसानी रहेगी, क्योंकि अब एलसीएम 220 में ले सकता हूँ और प्लस करके आएगा 160। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट और ये आ जाएगा आपका, दिस इज 8/11। और 8 को 11 से डिवाइड किया जाए तो आपको आंसर मिलेगा, दिस इज 8/11 विच गिव्स मी 0.7272। तो आपका आंसर है 0.7272। और इसे हम राउंड ऑफ करेंगे टू डेसिमल प्लेसेस, सो दिस इज 0.7272 रिपीट होएगा। और इसे अगर हम टू डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें तो ये 5 से पर दिस डिजिट इज ग्रेटर देन 5, सो वी विल ऐड 1 हियर और ये बन गया आपका 0.73 एम्पियर जो है टोटल करंट है सर्किट में। ओके, नाउ लेट्स डू द और पार्ट। सो और पार्ट में आपसे पूछा है स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, और उसे आपने एक्सप्रेस करना है मैथमेटिकली व्हेन एन अप्लायंस ऑफ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ वोल्टेज V एंड करंट I। सब कुछ दे रखा है आपको, रेजिस्टेंस दे रखी है, सोर्स वोल्टेज V दे रखी है, करंट I फ्लो कर रहा है सर्किट में टाइम t के लिए। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स, उसकी पहले होता क्या है। सो दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इट स्टेट्स कि किसी भी सर्किट में
अगर जब हीट प्रोड्यूस होएगी, जूस लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट इट्स, ये बताता है कितनी हीट प्रोड्यूस होएगी, states that heat produced in a resistor. Okay. So ये कहता है कि heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current. Okay. So it's directly proportional to the square of the current. So heat को हम डिनोट करते हैं H, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन ये, और जितना ज़्यादा करंट का स्क्वायर होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होएगी। और दूसरा है, इसका एक फैक्टर इस पे डिपेंड करती है हीट प्रोड्यूस, और दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा सर्किट रेजिस्टिव होएगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होएगी। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस होती है करंट के लिए, रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। तो अगर सारा का सारा आपका सर्किट रेजिस्टिव है तो उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होएगी। तो आप लिख सकते हो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। नेक्स्ट रहेगा आपका टाइम, कितने टाइम के लिए फ्लो करेगा, तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट प्रोड्यूस उसके भी। मतलब जितने ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा सर्किट में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। और आपने देखा या सुना होगा कि किसी भी मशीन को हम जब ज़्यादा देर तक ऑपरेट करते हैं, किसी मोटर को या किसी ऐसे मशीन को जिसमें पार्ट्स जो है एक दूसरे के ऊपर से दे रन ओवर ईच अदर, तो हम उसे थोड़ी देर बाद बंद कर देते हैं, बिकॉज the heat produced in that circuit is directly proportional to the for the time to the time for which the current flow। जितने ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, डायरेक्ट proportional to the time for which the current flows। तो अगर आपको इसको मैथमेटिकली लिखना है तो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी। अब अगर हम 1, 2 और 3 को कंबाइन करें तो आपका कुछ ऐसा बनेगा, हीट प्रोड्यूस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई आर स्क्वायर आर टी। आप प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो यहाँ कुछ कांस्टेंट रहेगा, उसे हम लगाएंगे नहीं अभी। सो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बट हमसे पूछा है कि we have to express in terms of VI and R, VIR and T। So VIR and T में ये नहीं है हमारे पास, सिर्फ हमें चाहिए VIR and T। So I can also express it as in terms of VI and T। So अभी जो मेरे पास है या रेजिस्टेंस R भी, तो ये आपका जो फॉर्मूला है आप ये लिख सकते हो, H is equal to I square RT, और let me use the Ohm's law और R को रिप्लेस कर देते हैं। तो हमें पता है V is equal to होता है IR, तो आपका R हो जाएगा V by I, और इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ डालें तो H is equal to हो जाएगा I square, R की जगह आ जाएगा V by I into T। तो ये ऐसे, ये है I square, R हो जाएगा V बाय आई इंटू टी, एक आई कट जाएगा और हमारे पास बच गया एच इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। इफ यू हैव टू राइट इट completely in terms of potential difference, current and time। Okay, next part। Okay, next part में दिया है 5 ohm resistance is connected across a battery of 6 volt। We have calculated the energy that dissipates as heat in 10 seconds। So let's write down what is given to us. It's a resistance
potential difference. So ये पार्ट टू आपको दिया है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है 5 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम V से डिनोट करते हैं वो है 6 वोल्ट। और आपको दे रखा है टाइम इन सेकेंड्स। तो ये टाइम है 10 सेकेंड्स। दिस इज नाउ दिस इज 10 सेकेंड्स। और हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी। एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। सो और एनर्जी डिसिपेटेड द फॉर्म ऑफ हीट। इस केस में एक 5 ohm resistor connected across a battery of 6 volt. We have to calculate the energy that dissipates as heat. So as heat means that we have to use the formula H is equal to the formula for that is the Joule's law of heating, which says that H is equal to I square RT, but I is not given. We have to get it completely in terms of R, V and T. So Ohm's law से V is equal to होता है IR, I हो जाएगा V by R और ये I square है तो आई स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर और टी वैसे रहेंगे, एक आर कट जाएगा, एच आपका आ जाएगा वी स्क्वायर आर इंटू टी। अब वैल्यू रिप्लेस करें तो वी पोटेंशियल डिफरेंस है 6 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 5 ओम, टाइम है आपके पास 10 सेकेंड्स। So this is 5 2s are 10 and heat. So this is 36 into 2 is 72 और heat dissipated का जो यूनिट है वो है जूल, बिकॉज इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जितनी भी एनर्जीज हैं सबका ऐसा यूनिट जूल ही रहता है। सो दिस इज 72 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट फिक्सेस अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करने के बाद यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल शी प्लेसेस ए बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट। सो एक पेपर के बीच में इसको फिक्स करने के बाद बीच में रख दी एक बार मैग्नेट और उस पे स्प्रिंकल छिड़काव कर दिया कुछ आयरन फाइलिंग्स का यूनिफॉर्मली अराउंड द बार में। इसके चारों तरफ आयरन फाइलिंग्स जो है मतलब आयरन का जो आप यू कैन से दैट इट्स इन द पाउडर फॉर्म चूड़ा जो है वो सॉल्ट स्प्रिंकलर से। जैसे कि घरों में सॉल्ट स्प्रिंकलर रहता है जिसे हम खाने में जो नमक जो है वो डालते हैं तो वो सॉल्ट स्प्रिंकलर से आयरन फाइलिंग्स डाल रहे हैं और फिर इस बोर्ड को जेंटली टैप किया है तो उसने ऑब्जर्व किया कि आयरन फाइलिंग्स जो है वो अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लेती हैं। उस पैटर्न का आपने डायग्राम बनाना। सो उस पैटर्न का डायग्राम कुछ ऐसे होगा कि लेट्स से ये आपकी वाइट शीट ऑफ पेपर है और उसमें आपने फिक्स कर दी एक बार मैग्नेट। ये बीच में बार मैग्नेट है, इसके चारों तरफ जो है आयरन की फाइलिंग्स है, आयरन का जो स्प्रिंकल करा है। तो ये जो आयरन की फाइलिंग्स है कुछ अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे इस पैटर्न में, इस पैटर्न में ऐसे 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 कुछ इस तरह से। तो ये जो पैटर्न है ये ज़्यादा क्राउडेड रहेगा पोल्स पे, यहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड रहेगा इस तरह से। तो ये आप बना सकते हो ऐसे और ऐसा लगेगा कि ये लाइन जो है क्लोज लूप्स में है और एक एंड से निकल रही है इमर्ज हो रही है और दूसरे एंड पे जाके मर्ज हो रही है। तो जहाँ से इमर्ज होंगी वो नॉर्थ और ये मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल है। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेंगी और टू बी मोर प्रिसाइज अगर आपको डायग्राम देखना है तो कुछ वो इस तरह से होएगा, इस तरह से। तो आप इस तरह का एक डायग्राम बना सकते हो ये। तो इसमें इस डायग्राम में लग रहा है कि कुछ ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ पोल से निकल रही है तो इन निकलने को बोलते हैं इमर्ज। तो जहाँ से इमर्ज होंगी वो बन जाएगा आप वो रहेगा आपका नॉर्थ। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कुछ क्लोज लूप्स में है ऐसे क्लोज लूप्स में इस। तो नॉर्थ से निकल रही है और साउथ की तरफ जा रही है। तो ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ मर्ज हो रही है। तो साउथ पे मर्ज हो रही है इसलिए इसको साउथ
जहाँ पे, और ये कंटिन्यूस क्लोज कर्व्स है इस तरह से। आप डायरेक्शन भी बना सकते हो उसके और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में मर्ज करेंगी। सो नॉर्थ से निकल के साउथ में मर्ज करेंगे, और यहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड है, इधर पोल्स पे ज़्यादा क्राउडेड है। सो ड्रॉ ए डायग्राम टू शो दिस पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स। आप ये डायग्राम बना सकते हो, ये रहा डायग्राम। Okay, next we have to draw the magnetic field lines of a bar magnet showing the poles of the bar magnet as well as the direction of the magnetic field lines. अब इन्हीं को आपने एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के बताना है। और बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से होंगी। अगर हम बार मैग्नेट बनाएं तो बार मैग्नेट के सबसे पहले बनाएंगे हम नॉर्थ और साउथ पोल। सो ये है नॉर्थ और साउथ पोल। लेट्स से दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ पोल। तो जैसा कि मैंने कहा था, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाके मर्ज होती है। तो यहाँ से निकलेंगी, साउथ में जाके मर्ज होंगी। तो यहाँ से आप कुछ एक दो तीन ऐसे भी बना सकते हो। तो यहाँ से निकलेंगी और इधर जाके मर्ज होंगी। सो दीज आर कमिंग आउट ऑफ, तो यहाँ पे तो इसकी डायरेक्शन जो है कुछ ऐसे रहेगी। आप एक और भी बना सकते हो। मेक श्योर कि ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ना करें। ओके, डायरेक्शन जो है हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ रखनी है, बाहर। तो साउथ पे ये मर्ज हो रही है। So these are merging and these are emerging। जहाँ से इमर्ज है वो नॉर्थ का नॉर्थ है, यहाँ से निकल रही है। तो ये है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। And if you want to see it more accurately और ज़्यादा अच्छी तरह से देखना है, तो ये है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ इस तरह से आप बना सकते हो ज़्यादा नीटली अगर आपको बनाना है। तो ये है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ। So this is north and this is south। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पे जा रही है। तो यहाँ इमर्ज हो रही है और यहाँ पे मर्ज हो रही है। ओके, तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट ए पॉइंट determined using the field lines? Why do two magnetic field lines not cross each other? तो अब इसमें पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अगर आपको किसी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन पता करनी है तो वो आप कैसे पता करोगे। तो हम मान लेते हैं कि वहां पे आप एक में कंपास निडल भी रख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। तो डायरेक्शन ऑफ जो नॉर्थ पोल होगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट ए पॉइंट डिटरमिन्ड यूजिंग द फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस अगर से मान लेते हैं कि ये हमारे पास आपका बार मैग्नेट है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो एक मैग्नेटिक दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेते हैं। ओके, अब आपसे पूछा है, मुझे पता है ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है बार मैग्नेट का, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। क्वेश्चन में पूछा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट ए पॉइंट डिटरमिन यूजिंग द फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइन से कैसे पता करोगे। तो फील्ड लाइन पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक निडल रख सकते हो। तो जब कॉम्पस निडल यहाँ पे रखोगे तो कॉम्पस निडल में जो निडल है दैट इज एक्चुअली ए मैग्नेट। वो एक मैग्नेट रहती है इस तरह से। और अगर ये मान लो इस डायरेक्शन में पॉइंट करती है नॉर्थ, अगर मान लो ये नॉर्थ इस तरफ है, तो जो नॉर्थ है ये आपकी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंपस का जो नॉर्थ है वो आपको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की। या टू बी मोर प्रिसाइज, अगर आपको यूजिंग फील्ड लाइंस करना है तो इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट बनाओ। तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट
अगर मान लो आपको डायरेक्शन पता है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इधर से इधर है, क्योंकि नॉर्थ से निकलती साउथ की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ, तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट जाएगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं पी से। तो दिस इज हाउ यू फाइंड। और अगर आपको आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हो बाय प्लेसिंग ए compass needle on magnetic field lines। क्योंकि मैग्नेट जो है अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है, तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल will give the direction of magnetic field। और इफ यू ऑलरेडी नो, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है, तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट आपको डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की। नाउ अगर आपसे पूछा है व्हाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट क्रॉस ईच अदर, ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो और by drawing a tangent at that point gives the direction of magnetic field at that point। Okay. Now next is asked why do why do two magnetic field lines not cross each other। इसका आंसर है मान लो, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, मान लो ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये दोनों क्रॉस करेंगे, यहाँ पे क्रॉस करेंगे, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो ये इनकी डायरेक्शन से इस तरफ से आ रही है और यहाँ पे क्रॉस करेंगे, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए अगर मैं टेंजेंट बनाऊं इस पॉइंट पे, तो वो मुझे डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पे, मतलब डायरेक्शन है ये, दिस इज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है इस पॉइंट पे इस मैग्नेटिक फील्ड की इस लाइन के लिए, ये डायरेक्शन है, इसे मान लेते हैं हम B1। और इस लाइन के लिए यही पॉइंट ये कॉमन है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट बनाए तो डायरेक्शन मुझे मिलेगी इस तरह। तो इसका मतलब है एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस है, B1 और B2, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो अगर आपको लिखना है तो यू विल राइट दैट if they intersect each other, then at the point of intersection, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो कि कॉमन है दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, if they intersect each other, then at the point of intersection magnetic field will have two directions at that point। और एक ही पॉइंट की दो डायरेक्शंस कैसे हो सकती है, विल हैव टू, you can say different directions which is not possible। Hence no two magnetic field lines cross each other। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस they never cross each other। So this is the reason। ओके, अब है आपके पास और पार्ट, और इसमें दिया है हाउ आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट ड्रॉन यूजिंग ए कॉम्पस नीडल। सो कॉम्पस नीडल से कैसे बनाएंगे, और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ईच ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मैग्नेट आपने बना के देनी है। तो आपने कैसे बनाना है, लेट मी शो यू एंड देन यू कैन राइट डाउन। मान लो ये आपकी एक बार मैग्नेट है,
तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो कोई भी इधर, यहाँ पे एक कॉम्पस निडल जो कि मैग्नेटिक निडल है उसको प्लेस करना है ऐसे। तो इसकी जो निडल होएगी, लेट्स से इसकी जो निडल है वो ये है, इस तरह से पॉइंटेड। तो ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी ये कंपास निडल। तो आपने एक स्मॉल बार मैग्नेट ली, उसे क्या किया, एक ड्राइंग शीट के बिल्कुल सेंटर में रख लो। मान लो ये ड्राइंग शीट है, इसके सेंटर में रख लो। इसके सेंटर में रखने के बाद बीच में प्लेस कर दी एक बार मैग्नेट, ये है आपकी बार मैग्नेट। फिर आपने उसकी बाउंड्री मार्क करनी है, बाउंड्री मार्क कर लो ताकि अगर ये बार मैग्नेट हिल जाए तो आप वापस इसको इसकी इसी जगह पे रख सको। ठीक है, उसके बाद आपने अपने कॉम्पस निडल यहाँ किसी नॉर्थ, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल के पास कॉम्पस निडल रख ली। तो आपका जो कॉम्पस निडल है वो नॉर्थ की तरफ, या आपका नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करेगा, ये साउथ की तरफ। फिर आपने इसको उठा के ऐसे प्लेस करना है यहाँ पे कि अब जो कॉम्पस का जो साउथ है, अब ये नॉर्थ होगा, जो साउथ जो है वो पहले वाले नॉर्थ के ऊपर आना चाहिए। नॉर्थ को मार्क कर लो, पहला पहला वाला नॉट मार्क करने के बाद इसको आपने ऐसे रखना है ताकि अब जो साउथ आएगा वो नॉर्थ के साथ मार्क हो, तो आपको फिर नॉर्थ मिल जाएगा। फिर इसी तरह से ये प्रोसीजर फिर करना है, यहाँ पे फिर से इसको रखना है, और अब इसका जो साउथ है वो नॉर्थ के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। इस तरह से आपको अगर उनको ज्वाइन करते जाओगे तो इस तरह से आपको ये पैटर्न जो होगा फिर ये इधर को घूमेगी, इस तरह से क्लोज लूप बनाएगी। तो you have to mark the positions of the two needles, move the needle to the new position, और साउथ पोल जो है पिछले वाले नॉर्थ पोल को के साथ कोइंसाइड करेगा, मार्क करो, ऐसे प्रोसीड करते जाओ। और आपको जो है वो एक लाइन मिलेगी, आप उसे ड्रॉ कर सकते हो, और जो उसके स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। यू विल राइट डाउन द स्टेप्स। और ये है स्टेप्स। So how you will mark that? So दोबारा लिखना। These are the steps। सबसे पहले आपको लेनी है एक स्मॉल बार मैग्नेट, उसको ड्राइंग शीट के सेंटर में फिक्स करना है। ड्राइंग शीट के सेंटर में फिक्स करना है, ड्राइंग शीट होगी ड्राइंग बोर्ड पे, और उसकी बाउंड्री मार्क करो ताकि वो हिल जाए तो आप इसको फिर वहीं रख सको। स्मॉल कंपास निडल नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट पर लेके जाओ, और उसका जो साउथ पोल जो है वो उसके नॉर्थ पोल की तरफ रहना चाहिए, मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ। तो ये मैग्नेट का नॉर्थ है, तो कंपास निडल का साउथ इधर की तरफ रहेगा, नॉर्थ इधर, इनको मार्क करो नॉर्थ। तो दोनों पोजीशन जो है नीडल्स की मार्क करो, फिर नीडल को मूव करना है नई पोजीशन पे, अगली पोजीशन पे ले जाओ इधर कॉम्पस नीडल को। इसकी जो नीडल है जो कि इस तरह से रहेगी, वो आप फिर से नॉर्थ और साउथ में आपने अलाइन होगी, लेकिन यू मेक श्योर दैट साउथ इज अलाइन विद द नॉर्थ। साउथ जो है, जो साउथ इसका पॉइंटर है वो पहले वाली नॉर्थ पोजीशन पे इधर पॉइंट करना चाहिए। तो पिछली पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा नॉर्थ पोल, दोबारा मार्क करो नई पोजीशन नॉर्थ पोल की। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते जाओ, और आपने यहाँ से होते हुए इधर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, फिर आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं कुछ इस तरह से रहेंगे, इस तरह से। तो इन सब पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक क्लोज लूप रहेगा। आपको ज्वाइन द पॉइंट्स मार्क टू गेट ए फील्ड लाइन, ये आपकी बन जाएगी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसी तरह आप इधर को भी ड्रॉ करो, इधर को, तो आपके बन जाएंगी दो फील्ड लाइंस बन जाएंगी मैग्नेट की, और वही आपने बनानी है। तो यही क्वेश्चन में पूछा है, ड्रॉ वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ईच ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से बनानी, इधर भी और इधर भी। और अगर इसको आप देखना चाहते हो तो ये कुछ इस तरह से पॉइंट्स होंगे, इस तरह से। इस तरह से डॉटेड लाइन आप बना सकते हो, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा।
Okay, so we are done with question number 15 भी हो गया और with this we are completed this set और इस question का code था 3111 and we are done with the physics part. In the next video we will be covering up the 31 to 1 set of 2020. To like, share and subscribe. Thank you for watching.